हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। मैं हूं आपका दोस्त और आपका होस्ट अभिनव। आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एकेडमिक स्टडी पॉइंट में, जिसमें आज हम आपके 10th क्लास केमिस्ट्री का टॉपिक केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज केमिकल रिएक्शन, व्हाट इज केमिकल इक्वेशन, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशंस आर देयर, how can we identify that a chemical reaction has been completed, balanced chemical reaction. There is a lots of topic which is completed by one. Okay, so let's start. What is chemical reaction? So your first topic is chemical reaction. So the chemical reaction, it is a process in which one or more substance takes a part to form a new substance with their new properties. That is called chemical reaction. It means that कि ये एक टाइप का प्रोसेस है, जिसमें एक या एक से ज्यादा भी हो सकते हैं सब्सटेंसेस जो टेक्स अपार्ट होते हैं, मतलब एक साथ कंबाइन होते हैं और प्रोसेस होती है, और प्रोसेस होने के बाद कोई नया कंपाउंड फॉर्म करते हैं, बट उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो प्रीवियस कंपाउंड से डिफरेंट हो जाती हैं, प्रीवियस सब्सटेंस से डिफरेंस हो जाती हैं. दैट इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन. सो आई हैव जस्ट राइट अ डेफिनेशन. That process in which two or more than two substances takes apart to form new substance with their new properties is called chemical reaction. For example, अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल के तौर पे आप क्या ले सकते हैं? बर्निंग ऑफ पेपर. सेकेंड, rusting of iron. थर्ड, burning of candle. Next, melting of ice. That is called chemical reactions, and these are the examples of chemical reaction. Clear? Okay, now we will discuss chemical equation. So that method in which a chemical reaction just represented with the help of sign and symbols is called chemical reactions. ओके, ये एक मेथड होता है, जिसमें हम क्या करते हैं कि केमिकल रिएक्शंस को हम किसकी हेल्प से, साइन और सिंबल्स, इनकी हेल्प लेकर के रिप्रेजेंट करते हैं. दैट इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन. फॉर एग्जांपल, जिसमें मैंने अभी आपको दिखाया बर्निंग ऑफ पेपर. ठीक है, रस्टिंग ऑफ आयरन या मेल्टिंग ऑफ आइस. तो ये सब क्या है? केमिकल रिएक्शंस हैं. इनको मैं रिप्रेजेंट करूंगा साइन और सिंबल्स की हेल्प से. दैट इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन. फॉर एग्जांपल, फर्स्ट
when a magnesium ribbon just burns in the presence of air to form magnesium dioxide. So how can we represent magnesium ribbon? It means that magnesium, it will be burned in the presence of air, yani oxygen, because oxygen is helpful for burning. Okay, so we have to just add oxygen and it formed magnesium oxide. This is balanced, not balanced, because oxygen is double air, there is single, magnesium is single, magnesium is single. So we have to just double the oxygen, so multiplied by 2, but magnesium is double, so we have to multiply by magnesium 2. Now this is balance केमिकल रिएक्शन. तो इसमें हमने साइन और सिंबल्स यूज किए हैं. ये तो हमारा साइन है और ये जो है हमारा, ये हमारा सिंबल है. Is that clear? Okay. So that is chemical equation. So that there is a difference between reaction and equation. Reaction, it is a process. Rusting of iron rust with the help of water, acid, base, moisture, air. That is called chemical reaction. But when we represent this with the help of sign and symbols, then that is called chemical equation. Is it clear? Okay, class. Now we will discuss the characteristics of chemical reaction. So what is the meaning of characteristics? Characteristics of chemical reaction. So characteristics का मतलब एक आइडिया है. आइडिया मीन्स कि हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि एक केमिकल रिएक्शन कंप्लीट हुई है. कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? सो देयर इज अ 5 सिम्टम्स. देयर इज 5 मेजर सिम्टम्स. फर्स्ट, change in state. Okay. Second, change in color. Third, change in temperature. Fourth, formation of precipitate. And fifth, evolution of gas. तो अब ये 5 सिम्टम्स हैं या 5 ये कह सकते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिसकी हेल्प से या जिसकी मदद लेकर के हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन कंप्लीट हुई है या नहीं. तो पहला चेंज इन स्टेट. अगर स्टेट में कन्वर्जन आ रहा है, जैसे आइस मेल्ट होकर क्या बन जाता है? वाटर. तो आइस अगर मेल्ट होकर वाटर बन गया तो आइस पहले सॉलिड था, अब लिक्विड में कन्वर्ट हो गया. दैट मींस दैट केमिकल रिएक्शन हैज बीन कंप्लीटेड. ओके. सेकंड, चेंज इन कलर. कोई भी एसिड जब किसी इंडिकेटर से रिएक्ट करता है तो इंडिकेटर अपना कलर चेंज कर लेता है. हमें पता नहीं होता है कि अगर कोई भी सॉल्यूशन है, सपोज कर लीजिए कोई भी सॉल्यूशन है, उसमें हमने इंडिकेटर यूज किया, तो इंडिकेटर यूज किया तो उसमें क्या हो सकता है? कलर चेंज हो गया. कलर चेंज होने के बाद हमें पता पड़ता है कि ये एसिड है या बेस है. So that's why we can say that the chemical reaction has been completed. Okay. Next is change in temperature. Change in temperature, it means the temperature या तो rise होगा या फिर down होगा. Okay. तो जैसे कि हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड होता है, कोई क्लाइम होता है, सॉरी सिलिकलाइम होता है, सॉरी कोई क्लाइम होता है कैल्शियम ऑक्साइड बाय मिस्टेक. अब उसमें अगर वाटर ऐड करते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी सिलिकलाइम में कन्वर्ट हो जाता है. तो इससे क्या है, अब सिलिकलाइम में कन्वर्ट होगा तो उसमें बहुत सारी अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होती है. अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होती है, that is called change in temperature. Okay. Next is formation of precipitate. तो पहली चीज तो ये है कि precipitate क्या होता है. बहुत से लोगों को ये क्लियर नहीं होगा precipitate का मीन्स क्या होता है. It means that unsoluble substance which cannot dissolve in any solvent, that is called precipitate. Like sand. Sand cannot dissolve in water or any organic solvents. Okay. So that is called precipitate. It means that वो substance जो किसी solvent में dissolve ना होता हो वो उसके bottom में settle down हो जाए, that is called precipitate. तो फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट का मतलब क्या है कि ऐसी कोई जैसे सोडियम सल्फेट की रिएक्शन हम बेरियम क्लोराइड के साथ कराते हैं तो वहाँ NaCl और बेरियम सल्फेट बनता है. तो NaCl तो लिक्विड स्टेट में होता है वाटर के साथ, और बेरियम जो सल्फेट बनता है वो उसके बॉटम सेटल डाउन में उसके बॉटम में बैठ जाता है. तो दैट इज कॉल्ड फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट. देख लेते हैं कैसे. जैसे Na2SO4 प्लस BaCl2, तो 2NaCl तो बन गया प्लस
BaSO4. That is called precipitate. Okay. नेक्स्ट एवोल्यूशन ऑफ गैस. एवोल्यूशन ऑफ गैस का मीन्स है गैस का एवॉल्व होना. तो आपको पता होगा या आपने पढ़ा होगा, अगर कोई मेटल किसी भी एसिड से रिएक्ट करता है तो मेटल सॉल्ट बनाता है प्लस हाइड्रोजन गैस वहां से रिलीज हो जाती है. फॉर एग्जाम्पल Zn प्लस HCl. ठीक है, तो ZnCl2 प्लस H2. तो जिंक मेटल है, जिंक ने हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्शन किया, जिंक क्लोराइड बनाया, मेटल सॉल्ट हो गया और हाइड्रोजन गैस यहाँ से रिलीज हो गई. सो दीज आर द 5 सिम्टम्स by which you can identify that our chemical reaction has been completed or not. Okay, now we will discuss about types of chemical reaction. Okay, so let's see types of chemical reaction. So there are some types of reactions which are given below. Number first, combination. Second, decomposition. Third, displacement reaction. Fourth, double displacement reaction. Fifth, redox reaction, in which two types, oxidation and reduction. Sixth, endothermic and exothermic reaction. So these are the types of reaction which will be discussed. First is combination. तो जैसा कि आप नाम देख रहे हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन, तो जैसा नाम है वैसा ही उसका काम है. कॉम्बिनेशन का मतलब कंबाइन होना. इट मींस दैट रिएक्शन, आई हैव जस्ट राइट द डेफिनेशन, दैट रिएक्शन in which two or more substance takes a part to form a new single substance is called chemical रिएक्शन. मीन्स इसमें दो या दो से ज्यादा, दो ले सकते हैं, दो से ज्यादा भी ले सकते हैं, दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस कंबाइन होकर के रिएक्ट करते हैं और रिएक्ट होने के बाद वो एक नया सिंगल सब्सटेंस बनाते हैं, लेकिन उसकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है. दैट इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन. फॉर एग्जांपल वी कैन राइट हियर 2Mg plus O2, it becomes 2MgO. Okay, carbon plus oxygen, it becomes carbon dioxide. Okay, hydrogen plus oxygen, hydrogen plus oxygen, 2H2O, 2 hydrogen, sorry, 4H, and it becomes 2H2O. So that is called chemical reaction. Is that clear? Okay, but there is I have done a little bit mistake in the previous topics in chemical reaction and chemical equations. मैंने आपको ये नहीं बताया कि what is reactant और what is product. So now I will tell here these substance which are takes a part in a chemical reaction, that is called reactant, and then the new substance has been formed, that is called product.
Okay, so these are the reactant which are takes a part in a chemical reaction and product which are formed, that is called product. Okay, so chemical combination reaction वो reaction होती है जिसमें दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस एक दूसरे से रिएक्ट करके एक नया सिंगल सब्सटेंस बनाते हैं, that is called chemical reaction of combination या combination reaction, that is called combination reaction. chemical reaction नहीं, combination reaction. Combination reaction is clear? Okay, now next topic is decomposition. So start next topic, decomposition. Okay, so second decomposition, that type of reaction in which a single substance just divided into their simpler forms by which it is formed. It means that कोई एक सब्सटेंस, एक सिंगल सब्सटेंस अपने सिंपलर फॉर्म में डिवाइड हो जाए. सिंपलर फॉर्म में डिवाइड होने का मतलब ये है कि जिस चीजों से मिलके वो बना था वो उनमें सिंपल फॉर्म में डिवाइड हो जाए. सो आई हैव जस्ट राइट अ डेफिनेशन देयर दैट type of reaction in which a single substance just break down into their simpler substance is called decomposition reaction. For example, potash alum. For example, potash alum. जब इसको हम गर्म करते हैं तो ये फूल जाती है. फूलने का मतलब ये अपने छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. वाटर के मॉलिक्यूल्स वैसे भी नहीं होते, नहीं थोड़ा बहुत जो वाटर होता है वो आपसे अलग हो जाता है और वाटर अलग होने के बाद ये क्या है अपने अपने सिंपल फॉर्म में डिवाइड हो जाती है. तो रिएक्शन देख लेते हैं इसकी क्या होती है. इसका फॉर्मूला होता है K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस एंड 24S2. जैसे इसको हम गर्म करेंगे तो ये तीनों सब्सटेंस अपने अलग अलग फॉर्म में डिवाइड हो जाएंगे. K2SO4 अलग, Al2SO4 का होल थ्राइस अलग प्लस 24H2O अलग. Okay, so this is called decomposition reaction. That is clear. Now our next topic is displacement reaction. But इसको पढ़ने से पहले हमें एक छोटी सी जानकारी और होनी चाहिए. डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब क्या होता है पहले तो ये समझ लेते हैं. डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज दैट टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच a high reactive metal just displace a low reactive metal from their compound. That is called displacement reaction. मीन्स है कि कोई जो हाई रिएक्टिव मेटल्स है उसके जो लो रिएक्टिव मेटल के कंपाउंड है उसके में से उस मेटल को हटाकर तो उसकी प्लेस पे जाकर खुद जाकर बैठ जाती है. दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. फॉर ऐसे समझ सकते हैं स्कूल में जैसे कोई ताकतवर बच्चा है कमजोर बच्चे को उठा के अलग कर दे और उसकी जगह जाकर खुद जाकर के बैठ जाए. दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट. ओके, तो अब यहाँ इशू ये आता है कि हमें कैसे पता पड़ेगा कि कौन सा ताकतवर है और कौन सा नहीं है. तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि आपकी एनसीईआरटी चैप्टर जो है मेटल एंड नॉन मेटल्स थर्ड चैप्टर, उसमें एक टॉपिक है रिएक्टिविटी सीरीज, जिसके बारे में मैं भी आपको बता देता हूं क्या होता है रिएक्टिविटी सीरीज. इस सीरीज में क्या है कि इसमें कुछ मेटल्स को उनकी इंक्रीजिंग रिएक्टिविटी के बेसिस पर एक सीरीज में अरेंज किया गया है. तो जब नीचे से ऊपर जाएंगे तो उनकी रिएक्टिविटी क्या है वो इंक्रीज होती जा रही है. तो उसको उस ऑर्डर में इंक्रीज किया रखा गया है और उस सीरीज को हम रिएक्टिविटी सीरीज कहते हैं, जहां पर आई थिंक 14 to 18 एलिमेंट्स हैं जिनको अरेंज किया गया है. ठीक है, जहां पर सबसे पहले नाम आता है पोटेशियम का. पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और भी हैं. तो सीरीज ऐसे चलती रहती है. तो इसमें आपको आइडेंटिफाई करने में इशू नहीं होगा कि कौन सा एलिमेंट हाई रिएक्टिव है और कौन सा लो रिएक्टिव है. तो आप इस रिएक्टिविटी सीरीज के बेस पर उसको आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं. तो मैं इसकी डेफिनेशन लिखा देता हूं आपको क्या होती है. दैट टाइप ऑफ रिएक्शन
in which a high reactive metal just displace low reactive metal from their compound is called displacement reaction. ठीक है. For example, when iron react with copper sulfate, then it forms ferrous sulfate and copper just displaced by them. तो ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि जो आयरन है वो कॉपर से हाई रिएक्टिव है. रिएक्टिविटी सीरीज में आयरन जो कॉपर से ऊपर आता है, इसलिए आयरन ने क्या किया, कॉपर को हमसे रिप्लेस करके उसकी जगह ले ली. तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में. What happens when a iron nail just dip into the copper sulfate solution? Yeah, what happens with the color of copper sulfate solution when a iron nail just dip into the copper sulfate? So you know very well copper sulfate has a blue color solution. Okay, so जब आयरन कॉपर का डिस्प्लेस कर देता है तो कॉपर का जो ब्लू कलर है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का जो ब्लू कलर था वो कॉपर की वजह से होता है. तो जब आयरन ने कॉपर को वहां से रिप्लेस कर दिया तो उसका जो ब्लू कलर है वहां से फिनिश हो गया और वो अपने नॉर्मल कलर में वापस आ गया. सो दैट्स किसकी वजह से हुआ, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की वजह से. क्यों हुआ? क्योंकि आयरन जो है वो कॉपर से हाई रिएक्टिव है, उसने कॉपर को वहां से डिस्प्लेस कर दिया जिसकी वजह से उस सॉल्यूशन का जो ब्लू कलर था वो खत्म हो गया. ओके, थैंक यू. Our next topic is double displacement reaction. Okay. So that type of reaction in which the mutual of ions has been exchanged from two different compounds to form new different compounds, that is called double displacement. तो डेफिनेशन ये होगा, दैट टाइप ऑफ रिएक्शन in which new compound has been formed by the mutual exchange of ions. Okay, for example, I have a reaction that there is Na2SO4 plus BaCl2. It forms 2NaCl and BaSO4. So you can just see that, आप यहाँ देख सकते हैं कि जो सोडियम था पहले सल्फेट के साथ में था, वो रिएक्शन करके किसके पास आ गया, क्लोरीन के पास. और जो बेरियम जो क्लोरीन के पास था वो रिएक्शन के बाद कहाँ पहुंचे, सल्फेट के पास. तो दिस इज द म्यूचुअल एक्सचेंज. म्यूचुअल एक दूसरे से अपनी जो सीट है वो रिप्लेस कर ली. सो दैट इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. इज दैट क्लियर? ओके, सो अवर नेक्स्ट टॉपिक इज redox reaction. What is redox? तो redox को पढ़ने से पहले हमें पढ़ना होगा पहले ऑक्सीडेशन और दूसरा रिडक्शन. Simple is that oxidation, the addition of oxygen and the removal of hydrogen from the compound, that is called oxidation. Simple. The addition of the addition of oxygen and removal of hydrogen is called oxidation. And reduction, the addition of hydrogen and removal of oxygen is called reduction. और जब ये दोनों ही प्रोसेस एक ही रिएक्शन में कंप्लीट हो रही होती है तो उस टाइप की रिएक्शन को हम रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं. फॉर एग्जांपल, आई हैव एग्जांपल इन विच zinc just react with copper oxide to form zinc oxide and replace copper. Okay, so that is called redox reaction. Now how? Let's see. Before the reaction zinc is single, but when it is react with copper oxide, so then oxygen is added to zinc. So oxygen is added to zinc
So it becomes oxidation. क्या बताया था मैंने अभी, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो ऑक्सीजन यहाँ ऐड होगी तो जिंक ऑक्साइड बन गया, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। क्लियर। नाउ कॉपर ऑक्साइड जब रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद कॉपर में आ गया, यहाँ से ऑक्सीजन रिमूव हो गई तो दैट इज कॉल्ड रिडक्शन। अब दोनों ही प्रोसेस एक ही रिएक्शन में कंप्लीट हो रही हैं, सो दैट्स व्हाई इट कैन बी से दैट इट आल्सो बी अ redox reaction. Is that clear? Okay. Now there is two more topics in this reaction. First is oxidizing agent and second is reduction agent या reducing। ये सबसे ज्यादा पूछने को आता है। रिएक्शंस दिए होंगे आपको ये पूछा जाएगा कि इसमें कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है, वो आपको आइडेंटिफाई करके बताना है। तो सिंपल इज दैट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जो सामने वाले सब्सटेंस को क्या कर दे, ऑक्सीजन अवेलेबल करा दे ताकि वो ऑक्सीडाइज हो जाए। तो इस रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का वर्क कौन कर रहा है, दैट इज कॉपर ऑक्साइड, दैट इज कॉपर ऑक्साइड। ओके। अब बात करते हैं रिड्यूसिंग एजेंट की। तो रिड्यूसिंग एजेंट का काम यहाँ कौन कर रहा है, जिंक ने क्या करा, कॉपर को रिड्यूस किया। सो हु इज रिड्यूसिंग एजेंट, दैट इज जिंक। तो बस सिंपल सा याद रखना है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यानी कि जो ऑक्सीजन को अवेलेबल कराए ऑक्सीडाइज होने के लिए, और रिड्यूसिंग एजेंट वो है जो ऑक्सीजन को रिमूवल करने में हेल्प कर रहा हो, तो वो हमारा रिड्यूसिंग एजेंट। इज दैट क्लियर? ओके। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज endothermic and exothermic reaction. Okay, so first we discuss about endothermic reaction. That type of reaction in which you need a little bit amount of heat energy to provide them to complete their reaction. For example, hydrogen and iodine. There are two substances, hydrogen and iodine, when they react. So, without rising any temperature, it cannot be react to each other. ये एक दूसरे से रिएक्शन नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आयोडीन और हाइड्रोजन दोनों की डेंसिटीज अलग अलग हैं, दोनों का रिएक्टिविटी सीरीज अलग अलग है, हाउ टू रिएक्ट, इन सब चीज़ों में बहुत सारा डिफरेंस है, जिसकी वजह से एक दूसरे से रिएक्ट नहीं करेंगे। तो इनकी डेंसिटी को इक्वल करने के लिए, इनको रिएक्टिव बनाने के लिए, इनके पार्टिकल्स को हाई रिएक्टिव करने के लिए हमें इसमें टेम्परेचर राइज करना होगा। इट मींस दैट हमें इनका टेम्परेचर बढ़ाना होगा, इनको हीट प्रोवाइड करानी पड़ेगी, जिसकी वजह से ये हाइड्रोजन आयोडाइड बना लेंगे। ओके। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सो एक्सोथर्मिक रिएक्शन, दैट टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच हीट हैज बीन रिलीज आफ्टर द कंप्लीटिंग रिएक्शन। जैसे रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है तो यहाँ पर अ लॉट ऑफ हीट एनर्जी हैज बीन रिलीज्ड। तो ऐसा कब होता है, जब हम कोई क्लाइम को वाटर के साथ गर्म करते हैं या वाटर के साथ मिला देते हैं, तो क्या होता है, गर्म नहीं किया जाता है, कहने मतलब बाय मिस्टेक गर्म निकल गया मुंह से। कैल्शियम ऑक्साइड को जब हम हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कराते हैं, हाइड्रोजन ऑक्साइड के साथ यानी वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं, तो क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है यानी स्लेक लाइन। तो जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म हो रहा होता है तो वहाँ उस सब्सटेंस का या उस लिक्विड का, उस फॉर्मेशन का टेम्परेचर हाई हो जाता है। और वहाँ हाई क्यों होता है, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी हीट एनर्जी क्या है, रिलीज होना स्टार्ट कर देती है, जिसकी वजह से इसका टेम्परेचर हाइज हो जाता है। दैट्स व्हाई वी कैन सी दैट दिस इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सो का मतलब होता है हीट का रिलीज होना, और एंडोथर्मिक का मतलब होता है हीट को एब्जॉर्ब करना ताकि रिएक्शन कंप्लीट की जा सके। सो दिस इज द एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ओके। I hope you guys that you have understand all the topics of this chapter, and the remaining topics of this chapter I will provide in your next video. If you are enjoying my videos, then please like and subscribe our YouTube channel and share the videos to your friends. Okay, thank you.